We are live. Hmm. Hi everyone. I am waiting for a few more people to join before we begin this session. I hope you all are aware this session is about an open health forum. इस forum में आप हर तरह के questions पूछ सकते हैं health से related. And ये forum हमने इसलिए हम live लेके आए हैं so that it can reach the normal audience. Hi Jyoti ma'am. तो ये जो ऑडियंस है हमारी इट इज दीज आर कॉमन पीपल. पहले हमने जितने वेबिनार्स करे हैं उसमें हम हमेशा किसी फिटनेस प्रोफेशनल को लेके आए हैं या एनीबडी फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, whether it is related to wellness, whether it is related to fitness. So what we will do today is that we have advocates here with us. Now these people are, common people. Okay, they have a different profession than us and they will be here to ask us certain questions जिस तरह से वो इन questions को इन problems को अपनी day to day life में उनको होती है. Hi Soni ma'am, thank you for joining. So आज हम ये करेंगे कि before we begin, the common topic over here is about health. Now, health and wellness, it is a very, very most talked about topic these days because of the crisis that we have. I would say the crisis is not over, but the effect of the crisis that people are settling in, थोड़ा comfort level आ गया है लोगों में. तो अपनी फिटनेस अब वो डर से बाहर निकल के थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट कि भाई अपनी हेल्थ पे, अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे, अपनी बॉडी को जिस तरह से आप फ्यूल कर रहे हो उस पे आपका ध्यान जाए. So before I welcome here Rahul here, Rahul Aryan is the co-founder of Rover Vibes. He's a fitness professional. He's also a special population coach. Now special population expert, by that I mean he's dealing with people जिनको medical conditions होती हैं like diabetes, like thyroid, like PCOS, PCOD. So इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, he's an expert in that field and he's known for transformation not just on physical fitness level but also on health and nutrition level. So the kind of diets he has given to people have stopped their medication and people have come out and with a rejuvenated lifestyle जिसमें लोगों का strength आई है, लोगों के अंदर लोगों में endurance आया, उनका medication बंद हुआ है. तो इसी तरह की चीजें हम इस रोबो बाइक्स पे डील करते हैं. सो ये न्यूट्रिशन का जो एक हमारा सर्विस है वो सिर्फ कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बट काफी सारी चीजों को लेके डील करता है. सो this is what this forum is all about. So I am going to add here, we have our advocates here. One is Yamini Parashar, who is going to talk a little bit about her, and then we also have Khushbu Sharma. She's also going to talk a little bit about her and they will tell us कि आज उनका यहाँ पर आने का reason क्या था. So I'm going to add Yamini here. Hi Yamini. Hi. How are you? I'm good. So Yamini, you're going to be in a discussion with Rahul today. So I want to ask you कि what was the reason that आपने ये decide किया कि राहुल से इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ये आपके लाइफ में कुछ इस तरह से चल रहा है जो आपके प्रोफेशन से भी रिलेटेड है probably. So थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताइए. इसके हेल्थ कंसर्न आई थिंक सबको ही होते हैं और स्पेशली आजकल जो चल रहा है कोरोना, इसमें तो इतना डर आजकल मुझे मन में बैठ गया है कि घर से नहीं निकलना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. तो इसमें लगता है कि इस टाइम किसी से कंसल्ट करना मुझे लगता है अच्छा रहेगा, थोड़ा ओपिनियंस लेना अपने डाइट को लेकर. तो इससे मैं इससे आया. ओके खुशबू, देयर इज अ रिक्वेस्ट आई हैव, मुझे जस्ट चेक करना है, आप एक बार हेडफोन हटा के नॉर्मल अगर बात करो, मुझे देखना कि आप मतलब आवाज आ रही है, इट्स क्लियर, बट आई जस्ट वांट टू चेक शायद वॉल्यूम बेटर हो जाए. एक बार आप हेडफोन निकालो प्लीज एंड विदाउट हेडफोन आप एक बार बोलो तो आई वांट टू हियर. आप खुशबू से बोल रहे हैं मुझसे? आपसे बोल रहे हो. अब आप बोलो.
थोड़ा सा, I mean, say anything. I just want to hear. Okay. अब आपको मेरी आवाज आ रही है? I think it's clear. Now it's clear. Right. Okay. So, Khushbu actually just joined here, and I don't see her here anymore. I think she has some network issues. But anyway, we'll wait for her. As soon as she comes online, we'll patch her through. So I am going to introduce everyone who has joined us today with Rahul. And Rahul, like I said, he's a fitness coach, he's a nutritionist, he's a special population expert, and the list is endless. So I'm going to call him before any further ado. Please, Rahul. Thank you, Samara. You're Hi, welcome. Amini. Hi, Rahul. Hi. How are you? I'm good. One हाँ, तो second. खुशबू नहीं, आप नहीं अभी तक ज्वाइन कर पाई है। उसका रीजन सिर्फ ये है, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। बाकी उसका मैसेज मुझ पे जस्ट आया है कि वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने वाली है। तो जब वो ज्वाइन करेगी उसको उसके साथ साथ फ्लो में ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो उससे पहले हम शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं हूँ आपका फिटनेस कोच राहुल आर्यन। मुझे जिन लोगों को मैं अभी देख पा रहा हूँ लगभग सभी लोग जानते हैं। बाकी जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताता हूँ। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम फिटनेस कोच। मुझे अराउंड 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और कुछ सर्टिफिकेशन किए हैं मैंने। उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है तो वो नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसे देख सकते हो आप मेरे आईडी पे। तो आज का जो सेशन है ये सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि आज से पहले जितने भी लोग हम ऐड करते थे या फिर मेरे साथ जो लाइव सेशन में होते थे, वो खुद ही फिटनेस प्रोफेशनल थे। तो अकॉर्डिंग टू फिटनेस प्रोफेशनल वो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करते थे जो कि जनरल ऑडियंस को समझ नहीं आता था। तो जनरल ऑडियंस, ये इसका यामिनी जो है, आई नो ये योगा से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन ये किसी फिटनेस इस तरह के रिजीम को फॉलो नहीं कर सकती, करती है, या किसी बड़े कोई सर्टिफिकेशन नहीं किए हैं। तो खुशबू और यामिनी पराशर जो कि एडवोकेट है, इनके साथ इसीलिए ज्वाइन किया है कि ये जनरली क्वेश्चन कर पाए। तो यामिनी, शुरू करते हैं। ओके। जैसे अभी कोरोना इतना ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम हो गया लेकिन स्टिल अभी फैल रहा है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। Hi. Khushbu is here. Khushbu here live. Hi, Amni. Hi. तो खुशबू कैसे हो? All good. गुड गुड ग्रेट। हाँ, तो चलो अच्छा है, खुशबू भी लाइव आ गई है। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। खुशबू, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो करा दीजिए प्लीज, क्योंकि आप ऑडियंस के लिए नई हो, आप दोनों नए हो, मैं तो सब जानते हैं जी, प्लीज। I'm Khushbu Sharma. I'm working in Delhi High Court as an advocate. That's it. Okay, so let's start the question. Please यामिनी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। मेरा यही क्वेश्चन है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे अच्छी करें। कोई किसी ने अगर आज तक कुछ ना किया हो अपने लिए, हेल्थ वाइज कुछ ना किया हो, अगर वो इन कुछ दिनों में कुछ करना चाहे और अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी चाहे और हेल्थ वाइज कुछ करना चाहे, तो वो क्या करे जिसका इमीडिएट इफेक्ट हो हमारी हेल्थ पे? सी, इम्यूनिटी को अच्छा करना सिर्फ फिटनेस से ही जरूरी नहीं है कि आप जिम जाते हो या फिर सिर्फ कोरोना आ गया है इस वजह से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। इम्यूनिटी का स्ट्रांग करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी करना, सुबह खाना खाना, शाम को डिनर करना, रात को डिनर करना, ठीक है, दोपहर में लंच करना, उतना ही जरूरी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। तो इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। उन बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें मैं बताऊंगा, जो कि पहली चीज है, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम पे लोड आए। आपका इम्यून सिस्टम फ्रेश पड़ा हुआ है, वो रिफ्रेश तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको लोड नहीं दोगे। उसको लोड किस तरह से देना है? किसी भी तरह के ऐसे वर्कआउट से जो कि आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो जॉगिंग है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो वो वॉकिंग भी हो सकती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्राइमरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं कहूंगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मतलब है कोई भी वेट ट्रेनिंग, चाहे वो बॉडी वेट से हो, चाहे वो एक्सटर्नल वेट से हो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपका फूड।
ऐसे फूड खाइए जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, आपकी ना कि सिर्फ इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, ओवरऑल हेल्थ एंड डाइट के लिए अच्छे हैं, तो उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है सप्लीमेंट्स। अगर आप अपने फूड से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स ऐड करें। दवाइयां नहीं होती हैं, वो सप्लीमेंट्स होते हैं। सप्लीमेंट्स और दवाइयों में फर्क समझें, ठीक है। बॉडी को जिस चीज की जरूरत है आप वो नेचुरली सोर्स ऑफ फूड से नहीं दे पा रहे हैं तो बेटर है आप सप्लीमेंट्स लीजिए। अगर आप पूरा कर पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल है विटामिन सी का। हाँ। ठीक है, तो विटामिन सी लेना आपको जरूरी है। एक चीज जी जी खुशबू, मतलब लोग ये बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना लाइक बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो ये सच है या झूठ है? हाँ। इसके बारे में कुछ? इसके लिए बहुत नेगेटिव वी शुड नॉट टेक इसके ऊपर सप्लीमेंट्स, हमें नहीं लेना चाहिए वरना आदत पड़ जाती है, बॉडी डिपेंड हो जाती है हमारी। ये सब बाहर जैसे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं या जो विटामिन या फिर मिनरल्स हम बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। सब बोलता है कि नहीं करना चाहिए, हमें बाहर से नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में। और बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने सप्लीमेंट लिया लेकिन उसके बाद भी उनकी हेल्थ पे कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ। एग्जाम्पल, कैल्शियम खा रहे हैं लेकिन स्टिल प्रॉब्लम वही आ रही है, उन्हें सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करें? और कुछ लोग जो बहुत पतले होते हैं वो सप्लीमेंट्स लेके मोटे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देते हैं वो फिर से उनकी बॉडी एकदम मतलब बेकार हो जाती है। जो भी है वो ऐसा बोलते हैं, मतलब आई डोंट एक नो क्वेश्चन और, कितना सच सप्लीमेंट है। क्या हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं बिना किसी को कंसल्ट करे? जैसे कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं कि ये आप रोज लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम बिना किसी से कंसल्ट करे सप्लीमेंट ऐसे खा सकते हैं? टीवी में कोई ऐड प्रॉब्लम आते होगी हैं। उससे? काफी लोग ऐसे ट्राई करते हैं, अपने ही डॉक्टर ठीक खुद है, ही बनते हैं, अपने खुद ही बनते हैं, तो खुद ही सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। ठीक है। यामिनी ने इस क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया है वैसे तो क्वेश्चन के साथ साथ। दूसरी चीज, पहली चीज, कोई भी सप्लीमेंट आप अगर लेते हैं, सप्लीमेंट लेना गलत बात है। ये गलत बात तब है जब आप अपने न्यूट्रिशन या फिर विटामिन्स आप अपने नेचुरल फूड से कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या, तब उस कंडीशन में या तो आपको कोशिश करनी है नेचुरल फूड से पूरा करें। अगर आप नेचुरल फूड से पूरा करते हो तो कोई जरूरत नहीं है लेने की, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो जरूरत है। और सप्लीमेंट्स कोई भी बेकार नहीं होता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी को उसकी जरूरत है या नहीं। जैसे कि अभी यामिनी ने एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, डाइट लेते हैं अच्छी खासी, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। कैल्शियम का एग्जाम्पल दिया था अभी, तो जो कैल्शियम है वो जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बोन ब्लॉक्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कैल्शियम उसके बाद भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है विटामिन डी। विटामिन डी अगर शरीर में पूरा नहीं है, आपकी बॉडी में कैल्शियम ना के बराबर जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर ये है किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या किसी अच्छे डॉक्टर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी है, ठीक है, जिसको सप्लीमेंटेशन की नॉलेज है, ठीक है, उससे जाके पूछें, उससे कंसल्ट करें, वो आपको सही से गाइड कर पाएगा कि कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना है, क्या सप्लीमेंट सही है क्या गलत है उनके लिए, ठीक है। राहुल, एक बात और मुझे इसमें बोलनी है। मुझे काफी साल पहले ना कैल्शियम डिफिशिएंसी हो गई थी काफी ज्यादा, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था विटामिन डी एंड कैल्शियम। लेकिन उसके बाद भी एक तो मैंने नोटिस किया कि मेरे स्कल पे साइड में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा उभार सा कुछ आ गया था, जो कि आज तक है कितने साल होने के बाद भी। तो मुझे, और उसी मेडिसिन से आया था, मेरे एक दो फ्रेंड है, उन्होंने भी कभी उन्हें कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो उन्होंने कैल्शियम और विटामिन डी साथ में ही खाया था, लेकिन स्टिल उन्हें भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसा क्यों है फिर? देखो, अगर ये प्रॉब्लम आई है, ये डॉक्टर बेटर बता पाएगा आपको, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो आई है ये हेयर फॉल प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक आपके आगे तक हेयर हो वो थोड़ा सा उड़ गए नहीं हैं पीछे नहीं, की तरफ। हुआ ये था कि अभी मेरे ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन हल्का सा यहाँ पे स्कल ही काइंड ऑफ वो बढ़ गया, एक स्पेशल पॉइंट पे हल्का सा वो उभर गया, बढ़ गया एक जगह पे। ये मतलब जो हेयर लाइन है ये रिसीड नहीं हुई, लेकिन वो बढ़ गया विटामिन डी काइंड और कैल्शियम का, ऑफ। ठीक, मैं बताता हूँ,
विटामिन डी और कैल्शियम का एज सच इससे कोई लेन देन नहीं है। इसका जो लेन देन है वो ग्रोथ हार्मोन से होता है। आपका ग्रोथ हार्मोन या किसी टाइम पे आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ होगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी और क्या कभी आपको पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कोई शिकायत रही है? नहीं। लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस कुछ मतलब जहां जैसे इस तरह से बाल आ जाना या आवाज में थोड़ा सा ज्यादा पतली हो जाना या ज्यादा भारी हो जाना? यहाँ पर हेयर बैक ग्रोथ हुई थी यहाँ पर, लेकिन मैंने टेस्ट कराए थे और सारे टेस्ट में यह आया था कि कोई हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं है, मगर उसमें सब में नॉर्मल आया था। गुड। मगर डॉक्टर को भी पता नहीं चल पाया था कि क्यों हुआ वो। इसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से ज्यादा लेन देन है, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बूस्ट होता है तो उसमें होता क्या है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। ठीक है, शायद ये प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई हो। ठीक है, ओके। खुशबू, खुशबू आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो। हाँ खुशबू, नाउ वी हेलो। कैन हियर यू। आवाज आ रही है आपकी? मैं पूछ रही हूँ कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब कहते हैं इम्यूनिटी, क्या ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है? और मतलब हमें इसे लेना कैसे चाहिए? हमें इन्हें सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना चाहिए या फिर हमारे फूड में ही ये हो जाता है हमारे लिए? मतलब ये पूरा हो जाता है एक दिन में कितना विटामिन सी हमारी बॉडी को चाहिए होता है बेसिकली? ठीक है, तो खुशबू और क्या रोल है इसका हमारी लाइफ में? जी, पहले मैं खुशबू का क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं क्योंकि आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है आपकी। खुशबू का क्वेश्चन ये है कि विटामिन सी का रोल क्या है हमारी बॉडी में और ये कितना लेना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो खुशबू, विटामिन सी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी। विटामिन सी के एक्चुअल जो काम होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी के साथ हमारे जो बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया लग जाते हैं, बाहर की तरफ से एक्सटर्नली जो बैक्टीरिया आते हैं हमारी बॉडी को बीमार करने के लिए, वायरस जो हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना जरूरी है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन सी जरूरी है। यहां तक कि सिर्फ वायरल या फिर बैक्टीरिया को लेके ही कुछ भी आप इस विटामिन सी के लिए सोच रहे हैं, जो सिर्फ ये इतने ही लिमिटेड नहीं है, इसके फंक्शन और भी बहुत ज्यादा हैं। बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स के से मतलब है हम कुछ भी खा रहे हैं तो खाते टाइम हमारी बॉडी जब पचाती है वो चीजें, तो उसके साथ साथ कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं, एक तरह के एसिड की तरह, फ्री रेडिकल्स जिनको कहा जाता है, जो कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन में भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं इनफैक्ट। ओके, आप सुन पा रहे हैं? वेट अ मिनट। हाँ, तो बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमें पॉल्यूशन से भी मिलते हैं, स्पेशली दिवाली के आसपास इतना पॉल्यूशन होता है, उसमें फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा होते हैं कि हमारी बॉडी को वो हार्म करते हैं, हमारे लंग्स पे इतना लोड, इतना प्रेशर डालते हैं। उसके लिए जरूरी है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, बॉडी में विटामिन सी रहे। फिर तीसरी चीज, अगर आप स्मोक करते हैं या जो चेन स्मोकर्स हैं, उनकी बॉडी में जो हार्म होता है सिगरेट से, उसके स्मोक को लंग्स में ले जाने से उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। उन साइड इफेक्ट से को मतलब एक तरह से पुश करने के लिए, उनसे बचने के लिए विटामिन सी जरूरी है। ठीक है, और विटामिन फ्री रेडिकल्स को मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जब वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग होते टाइम उसके नीचे जो स्पार्कल गिरते हैं उसको फ्री रेडिकल का एग्जांपल ले सकते हैं। वो अगर उसके पास बहुत ज्यादा देर खड़े रहोगे तो वो हमें हार्म कर सकता है। तो फ्री रेडिकल्स भी बॉडी में इसी तरह से होते हैं।
कि कुछ प्रोडक्टिव चीजों में से निकले हुए पदार्थ, उसको फ्री रेडिकल्स कहेंगे, तो वो बॉडी के लिए हार्म होते हैं। उससे बचने के लिए विटामिन सी खाना जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं विटामिन सी से, जो कि मैंने मेरे ख्याल से पोस्ट भी डाला हुआ है द रोवर वाइफ पे, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। और मैं लोगों से बोलूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए। तो राहुल, इस टाइम पर कुछ सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता विटामिन सी का, तो उसे कितना और क्या खाना चाहिए कि उसका डेली कोटा पूरा हो जाए विटामिन सी का, हमें बाहर से एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत ना पड़े? जो फ्रूट्स ज्यादा लेता है, जो भी कोई फ्रूट ज्यादा खाता है, उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत कम हो सकती है। बहुत कम चांसेस है उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो। तो फ्रूट भी ये नहीं, कोई भी फ्रूट, बनाना जैसे फ्रूट है, इसमें बहुत कम होता है विटामिन सी। विटामिन सी के गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी है कोई भी सिट्रस फूड जो होते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, संतरी, नारंगी, मौसम्बी, एवोकाडो, इन सब में होते हैं विटामिन सी। ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में होते हैं विटामिन सी। तो वो अगर आप अच्छे क्वांटिटी में खाते हैं तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं पूरे हो पाते हैं तो सप्लीमेंट लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज, यार इसकी मंदी आवाज कर लेकर, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या आती है, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है विटामिन सी, ज्यादा से मतलब ये नहीं कि कितना भी खा लो बहुत ज्यादा, ज्यादा से मतलब है थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है, मतलब कि ये पानी में घुल जाता है हमारी बॉडी के और यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको लेना जरूरी है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी एज इट इज एब्सॉर्ब कर लेती है या फिर और कुछ उसके साथ लेना जरूरी है? लाइक विटामिन सी अकेले बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है या फिर नहीं, एब्सॉर्ब हो जाता है नहीं? बिल्कुल, बॉडी बिना किसी इसके मतलब साथ कोई सप्लीमेंट लिए ये बॉडी इसको ऑब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। विटामिन सी का कोई ऐसा रोल नहीं है जैसे कैल्शियम का था कि विटामिन डी लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये विटामिन सी आप चाहे सप्लीमेंट्स के थ्रू खाइए, चाहे फ्रूट्स के थ्रू खाइए, ठीक है, ये विटामिन सी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके। और राहुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतनी तरह की डाइट होती है, एक न्यूट्रिशनिस्ट अलग तरह की डाइट बताता है, डाइटिशियन कुछ और बताता है, डॉक्टर कुछ और, योगिक डाइट डिफरेंट होती है, जेन डाइट डिफरेंट होती है, ह्यूमन बॉडी तो लेकिन एक ही है। तो डाइट इतनी सारी क्यों, और हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए, और कैसे डिसाइड करें कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी बेटर है? देखो, बड़ा ही यार सवाल प्लीज। हाँ, तो बहुत सारे तरह तरह की डाइट होती हैं, बहुत सारे नामों की डाइट होती हैं। तो बेटर है कि आप उस डाइट को फॉलो करें जिस डाइट का कोई साइंटिफिक रीजन है, या फिर उस डाइट में वो मैक्रोज अवेलेबल हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब, गुड का कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड गुड सोर्स ऑफ कार्ब, तीसरा वो फैटी एसिड जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। अगर इन तीनों में से भी कोई भी चीज मिसिंग है तो वो डाइट आइडल नहीं है, चाहे वो किसी भी डाइट का नाम ले दो। मैं एक इंसिडेंस बताता हूं आपको, जिस तरह के फैंसी नाम है। मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड भी नहीं कहूंगा, मेरा क्लाइंट था वो, काफी आज से 6 साल पहले जहां मैं काम करता था। तो उनकी बॉडी अच्छी बिल्ड हो गई थी, जेनेटिकली भी ब्लेस्ड थे थोड़े, उनकी बॉडी अच्छी बिल्ड हुई। उन्होंने एक डाइट बनाई, लोगों ने बोलना शुरू किया यार तेरी बॉडी अच्छी है, तू डाइट वाइट बना, लोगों को दे। मतलब कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। तो वो डाइट का नाम रखा तो ना DHD, ध्रुव, DH, हाँ, ध्रुव हांडा, ध्रुव हांडा डाइट। अच्छा सॉरी ध्रुव, अगर यार सुन ले तो तू। तो उस डाइट में क्या था ये सुनो। उस डाइट में क्या था, आप जो भी खा रहे हो, सपोज आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, उसके बाद आप 2 रसगुल्ले खाते हो, फिर दोपहर में 3 रोटियां या 4 रोटियां खाते हो, रात को 5 रोटियां या 4 रोटियां खाते हो, ये आपकी डाइट है। वो क्या करता था, उस डाइट में से चीजें हटा देता था, आधी कर दिया करता था।
और लोगों में कैलोरीज डेफिशिएट होती, रिजल्ट थोड़ा सा दिखने लग जाता था। लेकिन वो डाइट आइडियल नहीं थी, ना उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन था, ना गुड अमाउंट ऑफ फैट था, ना ही किसी तरह के कोई वाइटमिन डाले, उसने कुछ नहीं डाला। लेकिन लोगों को थोड़ा सा भी वजन कम दिखा मशीन पे, नॉट बाय बॉडी, नॉट बाय ग्रोथ, वजन कम दिखते ही ओ ये डाइट फॉलो करेंगे हम। 8-10 हजार रुपए महीने की वो डाइट बिका करती थी और सर्कल बहुत अच्छा था, तो काफी डाइट सेल होती थी मेरा उसकी। एक और क्वेश्चन है जी। जैसे अभी आपने बोला कि डाइट में सारी चीजें होनी चाहिए, कार्ब होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन जो कीटो डाइट है उसमें शायद कार्ब खाने को बिल्कुल मना करते हैं, तो फिर लाइक वो डाइट अच्छी होती है या नहीं होती है? लाइक वी कैन गो ऑन कीटो और नॉट, और वेजिटेरियंस कीटो पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होते। राइट, ठीक है। कीटोजेनिक वेजिटेरियन कर सकते हैं, ठीक है। ये वेजिटेरियन का ऑप्शन मतलब उनकी खुद की मर्जी है कि हमें चिकन नहीं खाना या मटन नहीं खाना या फिश, किसी भी तरह का मीट नहीं खाना, एग्स नहीं खाने, ये उनकी मर्जी है। लेकिन उनके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको फॉलो करके वो कीटोजेनिक पे जा सकते हैं। बड़े ही लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन और फैट है उनके पास। फैट के सोर्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट खा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं। तो कीटोजेनिक का क्या रोल है बॉडी में? कीटो से मतलब है बॉडी को, सिंपल सी बात है, हम अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्ब्स हमें एनर्जी दे रहा है, हमारे ब्रेन तक शुगर पहुंचा रहा है। लेकिन अगर कार्ब ही हट जाएगा हमारी डाइट से तो शुगर कहां से मिलेगी, ग्लूकोज कहां से मिलेगा एनर्जी के लिए? बता सकते हैं कोई? खुशबू, कहां से मिलेगा? लेकिन कार्ब्स तो आई थिंक हर चीज में ही होते हैं, थोड़े बहुत सभी चीजों में होते हैं। अगर हम नहीं भी उसे इंक्लूड करेंगे तब भी हमें मिल ही आता है कहीं ना कहीं से, स्पेशली इन इंडियन फूड। तो मैं बताता हूं, जब कार्ब बॉडी में नहीं जाता, जब आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है, उस टाइम पे बॉडी को ग्लूकोज की ही जरूरत है। आपने कुछ खाया, उसमें कार्ब नहीं है, रात को कुछ खाया उसमें कार्ब नहीं है, अगले दिन भी ऐसी चीज खाई उसमें कार्ब नहीं है, तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल ड्रॉप होगा। लेकिन वो कब तक होगा? जब तक आपकी बॉडी में कीटोन्स नहीं बनने लगेंगे। तो कीटोजेनिक का मतलब है आपके लीवर के अंदर कीटोन्स बनना। जब वो कीटोन्स बनने लग जाते हैं तो आपका डाइटरी फैट, जो आप फैट खा रहे हैं, उससे बॉडी एनर्जी लेने लग जाती है, और जो भी आपका स्टोर्ड फैट है उसको बॉडी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू आउट करने लग जाती है। तो कीटोजेनिक का ये फॉर्मूला है। डाइट कोई भी किसी से अच्छी नहीं हो सकती है। किसी को मैं ये नहीं कह सकता ये वाली इससे अच्छी है, ये वाली इससे अच्छी है, नहीं। डाइट डाइट होती है। सबसे अच्छी वो डाइट है जो आप फॉलो कर पाओ और आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो, बस। ठीक है, कोई ज्यादा रॉकेट नहीं चलाना इसमें। लेकिन राहुल हमें कैसे पता चले ये हेल्दी है? जैसे तुमने बताया कि वो DHD जो डाइट थी, तो उससे वेट लूज हो रहा था लोगों का, उन्हें इफेक्ट दिख रहा है, उन्हें लग रहा है ये हेल्दी है, कुछ अच्छा हो रहा है हमारे लिए। तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी इफेक्ट होगा हमें लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छा, अच्छी डाइट है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही क्वेश्चन, ग्रेट। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही बोला, वेट लॉस हो रहा है। तो आपको पहली चीज तो ये समझनी है, वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क है। वेट लॉस, मेरी दादी 12-15 दिन बीमार हुई, उनका वेट 7 किलो लॉस हुआ, इसका मतलब ये नहीं है सब गंगाराम हॉस्पिटल में जाके लेट जाओ वेट कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, वो वेट जो कि सिर्फ फैट का है, ना कि वाटर का, सिर्फ फैट का है, वो आउट हो रहा है। वो पता ऐसे चलेगा, आपकी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी फील होगी। वो पता ऐसे चलेगा, आपका जो फैट है टी शर्ट से साइज है, चाहे आपका वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपकी बॉडी श्रिंक दिख रही है, पतली दिख रही है। आइडल मसल मास लॉस होगा तो वेट ड्रॉप होगा। वेट फैट में भी होता है, मसल्स में भी होता है, वाटर में भी होता है, आपके इम्यून सिस्टम में भी होता है, बोन में भी होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। इनमें से सिर्फ आपको फैट को डाउन करना है, जो बेकार चीज है उसको डाउन करना है। आपका वेट ड्रॉप होता जा रहा है, वेट ड्रॉप होता जा रहा है, लेकिन फैट नहीं जा रहा है, देख आप मोटे ही रहे हो, उसका डाइट का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, आप कैसे चुने कि कौन सी डाइट अच्छी है, यही क्वेश्चन था ना, राइट? ये क्वेश्चन, हाँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एजुकेटेड होना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि सर्टिफिकेशन कर लो आप, तो थोड़ा सा
एजुकेटेड होना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन से हैं, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, कौन सा फैट्स अच्छा है हमारे लिए, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा किसी मेरे जैसे लाइव सेशन में बैठ जाओगे, उससे भी पता चल जाएगा कौन सी डाइट सही है या नहीं है। मैंने एक चीज और नोटिस करी है, एक डाइटिशियन बोलता है कि जैसे तुम्हें घी नहीं खाना चाहिए, तुम्हें बटर नहीं खाना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है हेल्थ के लिए। दूसरा बोलेगा ये बहुत अच्छी है, तुम यही खाओ रोज, ये तुम्हारे लिए बहुत एसेंशियल है। तो हमें कैसे पता चले क्या अच्छा है क्या बुरा? बिल्कुल ठीक। खुशबू और किसी बुक में लिखा है ये बेटर है, किसी बुक में लिखा है ये बुरा है, तब कैसे पता चले फिर हमें? देखो, फैट को बुरा क्यों कहते हैं? हाँ खुशबू बोली। मेरे को इसी में ऐड ऑन करना है कि डॉक्टर्स भी बहुत लोगों को मना कर देते हैं कि घी मत खाओ, ऑयल मत खाओ। सब लोग बिल्कुल ही मतलब आजकल एयर फ्रायर्स आ गए हैं इसीलिए कि बिल्कुल ही ऑयल या घी ना जाए। बल्कि वहीं पहले के टाइम में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लोग मक्खन खिलाते थे, घी खिलाते थे। और अब एकदम से उल्टा हो गया है कि बिल्कुल बंद कर दो, ये सब बहुत ही गंदी चीज है। इनकी एक नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है कि ये सब बेकार है, कोकोनट ऑयल सेम चीज बेकार है, सॉल्ट के लिए, ये बेकार सॉल्ट है। बेकार है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शुगर के लिए, हर चीज के लिए, अब ग्लूटेन के लिए भी हो रहा है शायद से, ये ग्लूटेन फ्री खाना खाओ, ग्लूटेन नहीं जाना चाहिए बॉडी वो में, क्या है, ये अच्छा सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स है किसी चीज। जैसे रिफाइंड ऑयल का एक आया है, रिफाइंड ऑयल अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। उसमें भी ये आ गया है, ये हेल्थ एंड हार्ट को बचाता है, नो नो ये फलाना ढिमकाना। लेकिन अभी एक और स्टडी आई है कि रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता, स्पेशली इंडियन खाने के लिए, क्योंकि जो इंडियन खाना होता है वो उसका हीटिंग पॉइंट बहुत होता है, और रिफाइंड ऑयल उसमें बेकार होता है। कुछ कहते हैं अच्छा होता है, कुछ कहते हैं बेकार होता है। तो क्या मतलब इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। एक और क्वेश्चन इसी के साथ, कि जैसे हर रोज स्टडी हो रही है, हर रोज जो स्टडी आ रही आई है वो थिंक हमें पुरानी एक और सेशन करना पड़ेगा, हमें एक और पूरे वो सेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। तो हमें ये स्टडीज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि हर रोज आती हैं और फिर बाद में पता चलता है नहीं ये तो गलत थी, अब कोई नई स्टडी आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं फैट्स, सोर्स ऑफ फैट, घी, मक्खन, रिफाइंड, कैनुला ऑयल, सरसों का ऑयल, सांडे का ऑयल, जो भी है, मतलब XYZ। तो मैं इन सब चीजों पे क्लैरिटी देता हूं। पहली चीज, डाइटिशियन जो मना करते हैं वो डाइटिशियन है कौन? वो है क्लिनिकल डाइटिशियन। तो जब आप बीमार हो, जब आप हॉस्पिटल में हो, आप बेड पे हो, आपकी हालत नहीं है एक्टिव रहने की, उस टाइम पे बहुत सारे एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और बहुत सारे फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हम डाइजेस्ट इजीली नहीं कर पाते हैं। तो डाइटिशियन का काम है ये बताना कि उस टाइम पे, जिस टाइम आप बीमार हो, क्या खाइए। लेकिन आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, हेल्दी हो, सुबह दौड़ लगा के आते हो, जिम जाते हो, उस टाइम पे आप उस डाइटिशियन से मिल रहे हैं जो क्लिनिकल डाइटिशियन है। उसको वही बताएगी, वो जो उसको नॉलेज है, जो उसने पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो बताएगी जो उसने पढ़ा है। लेकिन वो रूल यहां पे नहीं लगाया जा सकता कि आप हट्टे कट्टे बंदे को, जो 200 किलो की डेडलिफ्ट मार रहा है, 100 किलो का लिफ्ट कर रहा है, उस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है। फिर दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी, जैसे कुछ केसेस में मैं भी कहता हूं कि फैट मत खाइए। वो फैट इसलिए मैं मना करता हूं, अब किसी को कार्ब्स खाना है या रोटियां खानी है, रोटियां मैंने 4 डाली हुई हैं अ डे, 4 रोटी अ डे, तो एक रोटी में है 20 ग्राम कार्ब, तो 4 रोटी में हो गया 80 ग्राम कार्ब, 80 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो कार्ब है 80 ग्राम। 80 ग्राम की जो अगर कैलोरीज हम काउंट करेंगे, 320 कैलोरीज होती हैं 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, लेकिन फैट में, 80 ग्राम फैट में 540 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, अगर मैंने 80 ग्राम कार्ब बोला है, अगर समझ नहीं आए मुझसे प्लीज दोबारा क्वेश्चन करना है। ये 80 ग्राम अगर मैंने कार्ब खाने को बोला है, यानी कि 4 रोटी, और मैंने 80 ग्राम फैट खाने को बोला है। ठीक है, लेकिन बंदे को बोलना है कि मुझे कार्ब ज्यादा खाना है, मुझे 4 नहीं 6 रोटी खानी है, तो उसकी कैलोरीज इंटेक बढ़ जाएगा। राइट? खुशबू गॉट इट? यस यस। हाँ, तो उसका जो है
कार्ब इंटेक बढ़ जाएगा, मतलब कैलोरीज इंटेक बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में मैं ये बोलूंगा कि फैट से जो कैलोरीज मिल रही हैं वो थोड़ी सी कम कर दो। अगर आप 20 ग्राम कार्ब ऐड कर रहे हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया? 80 ग्राम, राइट? 80 ग्राम कार्ब कैलोरीज जो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं वो फैट से कम कर दो, तो आप उसकी जगह 12-14 ग्राम 10 ग्राम करीब फैट कम कर सकते हो। तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि आप फैट कम खाइए, कार्ब अगर आपको बढ़ाना है तो। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि बंद कर दो कार्ब, कि सारी वो आप न्यूट्रिएंट्स जो है कार्बोहाइड्रेट से लें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपके कार्ब्स कम वो फैट कम करने की या कार्ब कम करने की। ओके, अब रिफाइंड ऑयल के बारे में कि रिफाइंड ऑयल अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए कि नहीं होता? जी, रिफाइंड ऑयल एक्चुअली होता क्या है, उसमें टूफा मूफा पूफा इस तरह के फैटी एसिड्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्म करते हैं। और दूसरी चीज, उनकी जो हीटिंग बर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है। सॉरी, उनकी जो हीटिंग बर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट होते ही ट्रांस फैट में बदलने लगते हैं, आपकी बॉडी के लिए हार्म हो सकते हैं वो। ठीक है, तो आपकी बॉडी को अगर हार्म नहीं करना है तो बेटर ये है आप घी मक्खन जैसी चीजें ही यूज कर लें। रिफाइंड भी ठीक नहीं है, सेम प्रोसेस अप्लाई होता है रिफाइंड पे, सेम प्रोसेस अप्लाई होता है सोयाबीन ऑयल पे, सेम प्रोसेस। और सरसों का जो तेल होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में यूज हो रहा है, इंडियन होम में, इंडियन फूड्स में, सरसों के तेल की भी बर्निंग कैपेसिटी औरों से अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है कि कचौड़ियां तल तल के खा रहे हो आप उसमें, उसकी बर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। किसी भी फूड को दोबारा से गर्म कर रहे हो तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो बेटर ये है इस तरह से नहीं खाएं उन चीजों को जो दिक्कत कर सकते हैं। और राहुल, ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन के बारे में बहुत आ रहा है न्यूज में सुनने में। मैं बताता हूँ, अभी फिलहाल एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सोनी मैम ने पूछा, सोनी शर्मा, माई ग्रैंडसन ईटिंग pomegranate daily, he loves it, someone suggest it's harmful, please guide me। ठीक है, ठीक है, ओके, तो कोई हार्मफुल नहीं है वो, तो, कोई हार्म नहीं करता है वो। ठीक है, ऐसे उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा भी खाएगा, बहुत ज्यादा से मतलब ये नहीं होता 2 किलो 3 किलो, बहुत ज्यादा से मतलब 2-3 भी खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, तो खाते रहें। इनफैक्ट उसमें वाइटामिन वगैरह हैं तो खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। विटामिन सी है, अच्छा सोर्स है विटामिन सी का स्पेशली। ठीक है, और भी विटामिन होते हैं उसमें, तो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, यामिनी आप कुछ बोल रहे थे। मैं पूछ रही हूँ कि ग्लूटेन क्या होता है, और न्यूज में आजकल काफी आया था बीच में कि ग्लूटेन तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या है ये और क्यों नहीं खाना चाहिए हमें ये सब, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करो। खुशबू कुछ ऐड करना है? तो जो लैक्टो इंटॉलरेंट होते हैं वो लाइक दूध वाली चीजें नहीं ले पाते, तो मतलब दूध के लिए भी बताइए कि दूध कैसा रहता है बॉडी के लिए, या अच्छा होता है या नहीं होता है, पीना चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ कहते हैं, कुछ लोगों की स्टडीज आई हैं कि दूध से कोई कैल्शियम वैल्शियम नहीं मिलता और दूध इज नॉट गुड, ये तो यूजुअल है, तो बेकार में लेते हैं। लाइक एक वीगन डाइट शुरू हो गई है जो बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट को बिल्कुल अवॉइड करता है, तो इसके ये बारे में 4 भी कुछ क्वेश्चन हो बताइए। जाएंगे। कोई ग्लूटेन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछे, मैं इसको उनको भी क्लियर करता हूँ बाकी। एक सेम क्वेश्चन इसी में ग्लूटेन ऐड क्या कर है, दूं ग्लूटेन खाना चाहिए, कि कितना खाना चाहिए, कितना इनकी नहीं। स्टडीज आती है, हर दूसरे दिन आ जाती है, अब ग्लूटेन अच्छा नहीं है, अब शुगर अच्छी नहीं है, अब सॉल्ट अच्छा नहीं है, अब ऑयल अच्छा नहीं है। तो हमें इन पे ध्यान देना चाहिए इतना, क्योंकि काफी लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं इसको लेकर। देखिए, खाते हुए भी ना, पहले मैं अगर कोई खा गिल्ट क्रिएट होती है कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ, तो इससे क्लियर करो कि ये खाना ठीक है या नहीं। ठीक है,
तो पहली चीज मैं ग्लूटेन से शुरू करता हूं। तो ग्लूटेन जो होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। वो प्रोटीन जो मिलता है वो स्पेशली व्हीट में होता है। ग्लूटेन व्हीट में होता है, व्हीट से मिलने वाला एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। अच्छा। स्पेशली मतलब हमारी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो लोग क्या होता है, ग्लूटीन इंटॉलरेंट होते हैं, ग्लूटीन को उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती है। उनकी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत, उसमें दिक्कत हो जाती है। उसमें दिक्कत होने की वजह से आपका न्यूट्रिएंट्स जो होता है, जो भी आप खाते हैं, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बहुत कम एब्जॉर्ब करने लगती है ग्लूटेन की वजह से। ओके, लेकिन इंडिया में ग्लूटेन इंटॉलरेंट बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो तो आप ग्लूटेन को छोड़ो, अदरवाइज आपको ग्लूटेन कोई नुकसान नहीं कर रहा है तो आप ग्लूटेन खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कंट्री हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में तो इनफैक्ट ग्लूटेन को बैन भी कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लूटेन से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही थी पूरी कंट्री में। वहां के लोग ग्लूटेन टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ग्लूटेन का वो प्रोडक्शन है वो कम किया और बाहर एक्सपोर्ट करने लगे और अपने यहां से ग्लूटेन को कम कर दिया, बैन कर दिया। तो ग्लूटेन आपके लिए ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है तो ठीक है ग्लूटेन, अदरवाइज ग्लूटेन प्रॉब्लम है तो नहीं खाइए, नहीं खाइए ग्लूटेन, वो आपकी गट हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकता है। कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू हो ग्लूटेन की, कुछ भी अच्छा उसमें, क्योंकि हमारा रोटी में हमारा स्टेपल डाइट है, हम रोज आप क्वेश्चन कह रही प्लीज हूँ रिपीट करो। ग्लूटेन से हमारी बॉडी को कुछ अच्छा मिलता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन। ग्लूटेन की जो व्हीट है वही हमारी डाइट है, तो हम रोज उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा उसमें होना चाहिए तभी हम कंज्यूम उसे आगे कंटिन्यू करें। देखो, सिर्फ ग्लूटेन हम इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ग्लूटेन हमें बचपन से खिलाया जा रहा है। ग्लूटेन बहुत अच्छा है इसलिए कोई नहीं खिला रहा है, खिला हमें सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि बचपन से खिला रहे हैं, उनके पूर्वज खिलाते थे, उससे पहले खिलाते थे, सस्ता मिलता है, पेट भर जाता है। ग्लूटेन सिर्फ इस वजह से खा रहे हैं, एज सच ग्लूटेन का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम ग्लूटेन को रिप्लेस करना चाहें अपनी डाइट में, ग्लूटेन की जगह कुछ और खाना चाहिए, तो हमारा क्या ऑल्टरनेटिव्स क्या है इसके, फिर जिससे हमें हमारी बॉडी को कुछ मिले? हाँ, तो ग्लूटेन व्हीट में होता है, व्हीट में कार्ब भी होता है जो कि आपको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज अच्छी है, ये ग्लूटेन में नहीं है, व्हीट में है। तो व्हीट में कार्बोहाइड्रेट है जो कि अच्छा है। तो बेसिकली आपको लो ग्लूटेन वाली चीजें चाहिए। मैं तो कहूंगा अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो ग्लूटेन, मतलब अगर कोई नुकसान नहीं कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बड़े टाइम तक ग्लूटेन छोड़ा था, करीब करीब 1.5 साल, मैंने एक रोटी तक भी नहीं खाई थी उस 1.5 साल में, मुझे बहुत बेनिफिट हुए थे। और ये नहीं कहूंगा कि सबको हो सकते हैं, हो सकता है नॉर्मल ही रहे, लेकिन अगर आप उसको व्हीट को रिप्लेस करना चाहते हो, गेहूं को, तो उसके और सोर्स हैं, जैसे कि हमारा ये क्या बोलते हैं, ज्वार, मक्का, कुट्टू, इनको मिक्स कर लो, इनके मिक्सचर को खाइए, इनके आटा खाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको व्हीट से। और दूसरी चीज, वो जो कार्ब्स है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आएगा, उसकी जो डाइजेस्ट होने की टाइमिंग है वो थोड़ा और स्लो हो जाता है, स्लो कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, तो वो बॉडी के लिए ज्यादा बेटर है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है और गेहूं से तेज होता है वो प्रोसेस। मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, लाइक वीगन, आजकल वीगन बहुत चल रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, ये नहीं खाना, मिल्क, दूध में कुछ नहीं होता, दूध से कोई कैल्शियम नहीं मिलता, इसमें कितनी सच्चाई है? और वीगन डाइट लेनी चाहिए लोगों को या नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में। ठीक है खुशबू, आपने 2 क्वेश्चन बोले हैं अभी। पहला दूध के बारे में बताइए, दूसरा वीगन, राइट। दूध से शुरू करता हूं मैं, मिल्क से। मिल्क में अच्छी चीजें हैं या नहीं है, कोई ये बोलता है या नहीं है, कोई अगर बोलता है इसमें है तो बिल्कुल है, कोई बोलता है इसमें बेकार चीजें भी हैं तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल है।
तो उन बेकार चीजों के बारे में मैं बता पाऊं, पहले अच्छी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छी चीज है उसमें गुड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, वो गुड फैट है। दूसरा प्रोटीन, जो कि हम इंडियन की डाइट में बहुत 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 कम होता है। 98% इंडियन है जिनकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, उसके बावजूद भी डॉक्टर बोल देते प्रोटीन कम खाओ। ठीक है, तो 98% लोगों की डाइट प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उसके बावजूद भी वो प्रोटीन कम करते हैं। तो दूध में प्रोटीन है, लो कार्ब है, गुड फैट है, ये तीन चीज अच्छी हैं। लेकिन बेकार चीज क्या है? बेकार चीज है लैक्टोज शुगर। अगर आप लैक्टो इंटॉलरेंट हैं तो आपको दूध नहीं कंज्यूम करना है, मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं खाने हैं, वो सेम ग्लूटेन की तरह आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, डाइजेस्टिव हेल्थ हो गई, आपकी गट हेल्थ हो गई, उस पे इफेक्ट, उसको अफेक्टेड करता है वो। ठीक है, और फिर क्लियर है इतना खुशबू? हाँ, तो और एक और चीज होती है उसमें, दूध में, वो होता है कैसीन। कैसीन क्या है? कैसीन में भी एक प्रोटीन है। तो कैसीन जब बॉडी में डाइजेस्ट होता है प्रोटीन के साथ साथ, तो जो कैसीन में प्रोटीन मिलके आता है वो हमारी बॉडी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में वो अच्छा है, कुछ केसेस में वो बेकार है, लेकिन हार्म नहीं करता है वो। लैक्टोज शायद हार्म कर सकता है, मुझे नहीं करता हार्म, तो मैं पीता हूं। लैक्टोज इंटॉलरेंट भी बहुत कम है इंडिया में। ठीक है, तो दूध कोई ये बोलता है बिल्कुल बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कैल्शियम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बॉडी उसका कैल्शियम क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है? क्योंकि विटामिन डी का कोई ख्याल ही नहीं है हमें। हम कैल्शियम सोच के खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें विटामिन डी जब तक नहीं होगा बिल्कुल भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा आपका कैल्शियम, घंटा भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी के लिए हम सप्लीमेंट लें या फिर जो कहते हैं मॉर्निंग सनलाइट काफी अच्छी होती है उसके लिए, दोनों में से बेटर क्या है, सप्लीमेंट या फिर नेचुरल सोर्स है इसका? खुशबू, अभी यामिनी का क्वेश्चन है कि विटामिन डी कौन से सोर्स से लेनी चाहिए। ओके, तो विटामिन डी के जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ विटामिन डी, आप तीन तरह से विटामिन डी ले सकते हैं। पहला सोर्स जो होता है वो है आपका नेचुरल फूड, सोर्स ऑफ गुड फूड, जो कि जिसमें विटामिन डी रिच हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका आपकी सनलाइट, सेकंड। तीसरा होता है सप्लीमेंट। तीनों से ही ले सकते हैं वैसे आप, लेकिन अगर आप फूड पे जाते हैं, फूड में इतना विटामिन डी नहीं होता कि हमारी बॉडी को, मतलब डेली जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, इतना विटामिन डी नहीं होता कि हमारी बॉडी के लिए काफी हो। ठीक है, फिर हम सनलाइट की बात करते हैं। तो सनलाइट तो मतलब फूड में जब नहीं है तो सिंपल सी बात है, कहीं और से लेना पड़ेगा। फिर हम सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, वो हमारे स्किन को हार्म कर सकती हैं। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जो मॉर्निंग की भी धूप है, सन रेज है, वो हमारे शरीर के लिए ठीक है या नहीं है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये वाली अच्छी है धूप या ये वाली अच्छी है। ऐसा होता है, नेचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस होती हैं वो बॉडी को हार्म भी कर सकती हैं, आपकी स्किन को प्रॉब्लम कर सकती हैं, जो कि एजिंग से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। एजिंग प्रोसेस से मतलब हो गया स्किन पे रिंकल आ गए, धब्बे आ गए किसी तरह के, वो धूप से हो जाता है। बहुत ज्यादा टैन हो गई, वो धूप से होता है। और फिर इसमें धूप में एक और चीज है, हमें नहीं मालूम कि कितना लेना है, कितनी धूप हो रही है और हमें कितनी देर बैठना है, ये हमें नहीं मालूम है, पता ही नहीं है इसका। फिर तीसरा सोर्स आता है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट आप फूड से भी लीजिए, थोड़ा बहुत अच्छी बात है, आप वॉक वगैरह करते हैं, नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप में अगर चलते हैं सुबह की धूप में, वहां से भी मिल सकता है। तीसरा है सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट से ले सकते हैं। तो इसकी जो आइडल डोजेज है वो 60,000 आयु है अ वीक, जो कि सभी के लिए इतनी है। 1 साल से लेकर 70 साल तक के बंदे के लिए सेम डोजेज होती है। 70 से अबव जाते हो तो अलग चीज है, ठीक है, तो थोड़ी सी वो बढ़ जाती है।
ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो बढ़ जाती है, प्रेग्नेंट हो तो वो डोजेज बढ़ जाती है, उस टाइम पे विटामिन डी की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप सप्लीमेंट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। लोगे तो वो चीज पूरी मिल जाएगी, नहीं लोगे थोड़ी कम होगी। ठीक है, और वो सीधे सीधे आपके कैल्शियम को पे भी इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो सप्लीमेंट इज अ गुड सोर्स। बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर कर मेरा दिया एक और मैंने। हाँ जी। जैसे इंडियन कल्चर में बहुत फास्ट रखते हैं हम लोग, काफी सारे फास्ट होते हैं, मेरी मम्मी बहुत फास्ट रखती है, तो उसमें हम कूटू से बनी हुई चीजें बहुत खाते हैं। तो पहली बात तो ये फास्ट का हमारी बॉडी के लिए कुछ फास्ट अच्छा होता है या नहीं होता। दूसरी चीज, कूटू हमारी बॉडी के लिए कैसा है, कूटू का आटा ठीक है, ये वीट देखो से मैंने बेटर बताया है या था। नहीं है। हाँ, और मैं एक वही और बता रहा चीज, हूँ। जनरली हम फास्टिंग में ना सेंधा नमक खाते हैं, तो मुझे रिफाइंड सॉल्ट और सेंधा नमक में कौन सा बेटर होता है? क्या हम रेगुलरली सेंधा नमक खा सकते हैं या फिर नहीं? ठीक है, तो अभी बात है फास्टिंग की। अभी कुछ डाइट भी ऐसी आई हैं जो कि स्पेशली कहती हैं कि आप फास्ट करो, फास्टिंग पे रहो। वो होती क्यों है? वो हमारे एपिटाइट को कंट्रोल करने के लिए है। देखो, जो भी रिलीजन कहता है वो एक अलग चीज है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं जो बता रहा हूं वो साइंटिफिक है थोड़ा। ठीक है, रिलीजन में वो बहुत अच्छी चीज है फास्ट करना, फास्ट रखना। ठीक है, उस फास्ट को जब भी हम रखते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट, सपोज मैं आज कैलोरीज जो खा रहा हूं वो 2000 खा रहा हूं, कल खा रहा हूं वो 2000 खा रहा हूं, तो मैंने वीक में जो कैलोरीज खाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना, 14,000 मैंने कैलोरीज खाई। लेकिन अगर एक दिन मैं कोई 1 या 2 मील हटा देता हूं तो वो मेरी कैलोरीज हो गई कम, राइट? 2000 कैलोरीज कम हो जाती है अगर मैं एक दिन पूरा दिन छोड़ देता हूं खाना, तो मेरी बॉडी में कैलोरीज पूरी गई 12,000, 12,000। तो वो कैलोरीज जो हैं हमारी बॉडी में जो जाके स्टोर हो रही हैं, तो ये अच्छा है ना कि वो कैलोरीज नहीं आ रही हैं। ठीक है, कैलोरीज कम होगी, बॉडी पे फैट कम बढ़ेगा। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कैलोरीज जो है वो हट जाता है उससे, इसलिए फास्ट को माना जाता है अच्छा है। और फास्ट को जब ओपन करते हैं तो उसमें कुट्टू की रोटी होती है जो कि बिल्कुल हेल्दी होती है। कंपेयर करो अगर वीट से तो बिल्कुल हेल्दी है। कंपेयर करो अगर आप इससे, इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू है तो वो ज्यादा अच्छे हैं वीट से। तो इसीलिए मैं कहूंगा कुट्टू की रोटी और कुछों में मक्का जवार की रोटी वगैरह वगैरह होती हैं फास्ट खोलने के टाइम पे, तो वो ज्यादा अच्छी हैं। फिर आते हैं नमक पे। बहुत सारे जो ऐसा होता है, एक दिन फास्ट रखा वो अच्छा है। बहुत बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा होता है कि 40 डेज फास्ट हो गया, 9 डेज फास्ट हो गया, तो इतने दिन लगातार भूखे रहना। और बहुत लोग सीरियसली फॉलो भी करते हैं, सिर्फ पानी पीकर ही अपना फास्ट रखते हैं। तो इतने दिन भूखे रहना लगातार, ये अच्छा है या नहीं? नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, बॉडी क्या करती है, भूखी जब होती है तो हमारी मसल्स में जो कि एमिनो स्टोर्ड होते हैं वहां से एनर्जी लेने लगती है, जिसका कारण होता है मसल लॉस। मसल को बिल्ड करने में बहुत बड़ा टाइम लगता है, बहुत बड़ा। मुझे 1 किलो मसल मास गेन करने में 15 से 20 दिन, जो कि महीना भी लग सकता है 1 किलो मसल मास को गेन करने में। ठीक है, लेकिन 1 किलो फैट गेन करने में मेरे को 4 दिन भी नहीं लगेंगे। तो उससे फैट कम नहीं हो रहा, उससे मसल कम हो रहा है। आपके मेटाबॉलिक जो है वो डैमेज कर रहे हैं आप, वो ठीक नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है वो चीज, तो अलग चीज है, अदरवाइज वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि फास्ट के अंदर सब कुछ खाएंगे, बस रोटी नहीं खाते और उसे फास्ट बोलते हैं। तो वो चलेगा क्या? वो फास्ट माना जाएगा? जैसे फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स खा रहे हैं तो पूरा दिन इतने फ्रूट्स खा रहे हैं, पूरा मतलब पेट भर के उसे, तो वो फास्ट में काउंट होगा? फास्ट में वो काउंट इसलिए होगा क्योंकि जब आप नेचुरली डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे रूटीन में जो भी आप खा रहे हैं उससे बेटर है वो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका वो फास्ट है, मतलब ठीक है, आप कोई बेटर चीज खाने का कमिटमेंट कर रहे हैं, उसी को फास्ट कहते हैं मेरी लैंग्वेज में। आपने कमिटमेंट किया है कि मैं अच्छी चीज खाऊंगा,
कल से अच्छी चीज खाऊं, तो फास्ट है वो। ठीक है, एंड ऑफ द डे करते क्या हो, रात को कुछ लोग कहते हैं कि हम फास्ट रखते हैं इतना ज्यादा और हमारा वेट कम नहीं हो रहा। आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात में उतना खा लिया जितना आपने कल पूरा दिन में खाया था, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, अगर आप फिटनेस के लिए इस तरह से रखते हैं फास्ट, तो कैलोरीज रात को इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि मतलब कल से ज्यादा ले ली हो, आज कहां से कम होगा? ठीक है, तो सारा डिपेंड करता है कैलोरीज पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे। जी मैं आप बताते क्या? आवाज नहीं आ रही है मुझे रिफाइंड आपकी। सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट, सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट लेना चाहिए फिर सेंधा नमक? सेंधा नमक, देखो मैंने इसकी सेंधा नमक की एक्चुअल न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ी नहीं है, लेकिन हम जो नमक लेते हैं, नमक का बेसिकली मेजर कारण होता है लेने का उसका सोडियम। ठीक है, तो सोडियम इंटेक को बॉडी में बैलेंस रखने के लिए हम नमक खाते हैं। ठीक है, अब सेंधा नमक में सोडियम या तो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि लोग नमक भी बहुत ज्यादा खाते हैं, या उसमें सोडियम ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पता, तो उसके बारे में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और शुगर, शुगर को लेके बहुत बैड पब्लिसिटी है कि नहीं खाना चाहिए, हर चीज में शुगर है। तो हम क्या करें, इसे क्या खाएं क्या ना खाएं? शुगर अवॉइड करनी चाहिए या फिर थोड़ी बॉडी के लिए अच्छी है? मुझे ऐड ऑन हाँ जी, करना है कि शुगर, मिश्री या फिर गुड़, इन तीनों में से हमें क्या लेना चाहिए? लाइक अब तो कोकोनट शुगर, पाम शुगर ये सब भी आ रही है मार्केट में, सो और विच इज बेस्ट फॉर अस? फ्रूट और हनी जो हो गया, ये भी तो मीठे होते हैं, इनमें भी शुगर हुआ, लेकिन इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, कितना लेना चाहिए, या फिर इसकी शुगर हमें हार्म करेगी, ये भी थोड़ा क्लियर करो। देखो, अगर आप स्पेशल कंडीशन में हो, डायबिटीज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या थायराइड है, या हार्ट डिजीज है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शुगर किसी भी सोर्स से ना लें। ठीक है, वो उसका रीजन सिर्फ ये होता है, वो इंसुलिन को सेंसिटिव कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप बीमार हैं या आपको प्रॉब्लम है, तो वो चीज जो बीमारी है, थायराइड हो गई, डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गया, वो रेज होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो शुगर का जो सोर्स है, ये नेचुरल, ये न्यूट्रल जो शुगर होता है, चीनी जिसे कहते हैं, मिश्री, चीनी, गुड़, ये सब सेम ही कैटेगरी में है। इनसे बेटर कैटेगरी में जो आ जाते हैं वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज शुगर होता है, लेकिन उसमें वाइटामिन वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से उसको, फ्रूट को इनसे बेटर बताया जाता है। और फिर जैगरी के बारे में अगर बोलो, गुड़ के बारे में, तो उनसे बेटर इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट वैल्यू है, लेकिन है वो भी शुगर की। अगर आपकी स्पेशल कंडीशन है तो बिल्कुल मत खाइए, और अगर स्पेशल कंडीशन नहीं है तो भी शुगर कम कीजिए। मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आपकी स्पेशल कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में आ जाएं आप, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। राइट, जैसे फ्रूट के अंदर शुगर होती है, तो फ्रूट्स हमें कितने खाने चाहिए, वो भी हम अवॉइड करें या कम खाएं दिन में, ऐसा कुछ भी है? मैं सजेस्ट जो करता हूँ वो 2 फ्रूट्स अ डे होता है, सीजनल फ्रूट। ठीक है, जो जिसमें कि आपको न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, वाइटामिन वगैरह भी मिल जाते हैं। हर चीजें मैं नहीं कहता हूँ कि सप्लीमेंट लीजिए, हर चीज के लिए सप्लीमेंट लीजिए, तो कुछ कोशिश ये करी जाती है कि पहले आप नेचुरल सोर्स ऑफ फूड से सप्लीमेंट्स वगैरह लें, जो वाइटामिन वगैरह लें, वाइटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो होता है, तो आप सप्लीमेंट्स वगैरह से पहले नेचुरली फ्रूट से लें। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ 2 फ्रूट अ डे। 2 फ्रूट्स का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा वाला वो क्या होता है, वो तरबूज खा लिया आपने एक, तो नहीं, हमने तो एक ही खाया। कोई भी बेसिक फूड होता है, आपको बनाना खा सकते हैं, आप एक एप्पल खा सकते हैं, एक बनाना खा सकते हैं, इतना शुगर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बॉडी खुद भी शुगर बनाती है, इसीलिए शुगर को मना किया जाता है। सुबह मॉर्निंग में खाने चाहिए फ्रूट्स या रात में खाने चाहिए, कोई कभी भी खा सकता है? आपके, अगर आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो 24 आवर का टाइम है आपको। मैंने अगर लिखा है आप सेब खाइए, आप चिकन खाइए, आप एग खाइए, उनका कोई भी टाइम नहीं है। आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे 5 बजे भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो चीजें लेनी है जो भी आपको लिखी गई है या आपको सजेस्ट की गई है, आपके लिए हेल्दी है।
24 आवर के अंदर अंदर, कोई मैटर नहीं करता सुबह या रात को या दोपहर में, या फिर अब तो हमने मतलब कहीं जाना है तो हम नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हनी होता है उसमें, इस पे हनी, शहद, शहद में भी तो शहद, शुगर होगी। शुगर है, शहद में भी शुगर है, प्लीज अवॉइड। ठीक है, ठीक नहीं शहद को है भी बिल्कुल। चीनी से कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अगर आप हनी ज्यादा खा जाते हो क्योंकि टेस्ट भी अच्छा होता है, बॉडी क्रेविंग करने लग जाती है हनी खाते ही, तो आप चीनी एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हो, लेकिन हनी ज्यादा बढ़ा देते हो। हनी अगर उससे बेस्ट है, शुगर से, उससे नॉर्मल चीनी से बेस्ट है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हनी को इतना ले रहे हो वो चीनी को भी फेल कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शुगर चल जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून वगैरह हो गया वो चल गया, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जैसे आयुर्वेद है उसमें कहते हैं कि शहद खूब खाओ, जितना खाओ उतना अच्छा है, बीमार हो तब भी शहद खाओ, खाओ हमेशा खाओ। अभी तुम कह रहे हो कि कम खाना चाहिए, लिमिटेड खाना चाहिए, तो फिर दोनों में से क्या हमें फॉलो करें? उस चीज के लिए आयुर्वेदा के सारे ही टर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो अपनी एक्सरसाइज भी कराते हैं, वो अपने योग आसन भी बताते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज भी बताते हैं, उसके साथ वो कहते हैं ये चीजें फॉलो करो। ठीक है, तो वो अगर इस चीज पे फॉलो कराते हैं, उससे अगर लोगों को फर्क आता है तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर वो कोई ऐसा बोलता है और आपको फायदा दिख रहा है तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैं न्यूट्रिशन बताता हूँ, जो मैं डाइट बताता हूँ, वो बेसिकली साइंटिफिक बेस पे होती है। यूएस में न्यूट्रिशनिस्ट की लाइब्रेरी होती है, वहां से आई हुई इंफॉर्मेशन होती है, जो कि अपडेट मैं अपने आप को करता रहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं डाइट को सजेस्ट करता हूँ। किसी भी कोई एक डाइट को पकड़ के नहीं बैठ जाते, नहीं यही करना है, नहीं अब तो यही करना है, नहीं। आप अगर लैक्टोस इंटॉलरेंट है, आपके लिए अलग डाइट है। आप क्या बोलते हैं, ग्लूटेन प्रॉब्लम है आपको, तो आपके लिए अलग डाइट है। कोई स्पेशल कंडीशन है तो आपके लिए अलग डाइट है। बहुत सारी चीजें हैं, उनके उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ कीटो ही करो, नहीं मैंने कीटो के बारे में पढ़ा है आप कीटो ही करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। Okay. कोई और क्वेश्चन बाकी है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और, खुशबू। वर्कआउट से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड। हाँ, मेरे को ये पूछना, जैसे कोविड टाइम में बहुत लोग स्ट्रेस्ड है, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो इसके लिए एक्सरसाइज और फूड कैसे खाना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि हम मेंटली भी फिट रहें और फिजिकली भी? देखो, स्ट्रेस होने का कारण जो है, पहला तो वो ये है कि करने के लिए कुछ नहीं है, पड़े पड़े खाली दिमाग होता है, कुछ थिंकिंग आती रहती है। तो उसमें अगर सिर्फ आप अपने काम नहीं कर पा रहे हो या फिर फ्री हो, तो फ्री बंदा जल्दी स्ट्रेस में चला जाता है, जो बिल्कुल खाली है और उसको बाहर जाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, बंद कर दिया है। ठीक है, तो उस बंदे को स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर वो न्यूट्रिशन या फिर अपनी बॉडी के लिए सोचता है, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा भी सोच लेता है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक तरह का चार्ट तैयार करना चाहिए कि मुझे सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, मुझे इतने बजे उठ के ये करना है। तो कोई ना कोई एक्सरसाइज रिजीम शुरू करना है, क्योंकि माइंड में फिर ये रहेगा कि मेरे कोई एक्टिविटी करनी है, इतने बज गए मुझे ये खाना है, इतने बज गए मुझे ये बनाना है, तो वो खुद ही बिजी हो जाएगा और उसकी बॉडी का वैसे ही हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, फिटनेस स्ट्रक्चर जो है, वो बेटर बिल्ड होता रहेगा और वो स्ट्रेस वाली चीजें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा है एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस तो बिल्कुल दूर होगा। एक्सरसाइज जब हम करते हैं उस टाइम पे होता क्या है, हमारी बॉडी जो है वो एसिड रिलीज करती है, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो रिलीज करती है, उसको रिलैक्स करती है। एड्रेनलिन रश नेम से, एड्रेनलिन एप्रीपाइन बेसिकली एक हार्मोन है, वो होता है, बॉडी उसको शांत करती है। ठीक है, तो वर्कआउट बहुत जरूरी है। राहुल, अभी न्यूज में काफी आया था, बेटर है कि जुम्बा जरूरी है, मतलब आजकल एक्सरसाइज के भी बहुत सारे लाइक वो है कि योगा, जुम्बा, जिम, कौन सा बेटर है, या फिर कोई भी हम करें, लाइक रनिंग करें या फिर क्या करें? और जिम बंद है अभी लॉकडाउन में, तो घर पे ही है सब तो घर पे हम क्या ठीक कर है, सकते हैं?
ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई अगर ये कहता है योगा बहुत अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा है, कोई कहता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, कोई कहता है जुम्बा अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अच्छा है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए अच्छा है? योगा अच्छा है मेडिटेशन के लिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, शांत कर रहने के लिए योगा अच्छा है, फोकस बढ़ाने के लिए अच्छा है, ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है, ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है उसके लिए वो बहुत अच्छा है। फिर आ जाते हैं जुम्बा पे। जुम्बा किसके लिए अच्छा है? जुम्बा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, थम्स अप, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जुम्बा से होता क्या है? कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिविटी, मतलब हार्ट और लंग से जुड़ी हुई जो मसल होती हैं उनको वो बेटर करता है। जैसे जैसे वो बेटर होती रहेंगी आप अपने फिटनेस गोल की तरफ चलते जाएंगे, तो वो भी अच्छा हुआ। फिर आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम पे वो लोड डाल रहा है, आपके मसल्स को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके जॉइंट हेल्थ को वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी अच्छा है। तो सारी चीजें मिला जुला के करनी पड़ती हैं हमें। आप रनिंग और जुम्बा को कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इंटेंसिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन रनिंग और जुम्बा दोनों ही हार्ट पे काम कर रहे हैं। योगा फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके स्ट्रक्चर जॉइंट हेल्थ पे काम करता है, रनिंग आपके मसल इंड्योरेंस पे भी काम करती है। ये चार चीजें जो फिटनेस के कंपोनेंट हैं, पांच हैं वैसे, तो ये चार चीजें करने से पांचवी चीज अपने आप आ जाती है, आइडल बॉडी कंपोजिशन, बॉडी का बेटर होना, फैट का कम होना। ये चारों चीजें फॉलो करो, पांचवी चीज आ जाएगी। तो ये चारों चीजें करो, कोई एक चीज अच्छी नहीं है, कोई भी एक चीज अगर आप छोड़ रहे हो तो जो भी आप कर रहे हो वो गलत है। तो बेटर है सभी चीजें थोड़ा थोड़ा ओके करो। ओके न्यूज़ में काफी आया कि नॉन मीट भी खाना है कोरोना में। मीट से काफी मीट की इम्यूनिटी डाउन जा रही है या मीट से कोरोना फैल रहा है, तो हम इतने लोगों ने छोड़ दिया है काफी। इसमें खाना चाहिए नहीं, अभी कंटिन्यू करना चाहिए नहीं इस टाइम पर? यामिनी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया हूँ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, तो ओके, सॉरी मेरा प्लीज। क्वेश्चन है कि कोरोना इस टाइम पर से कोरोना फैल रहा है, अभी हमें मीट खाना चाहिए नहीं? न्यूज में काफी आया था कि मीट नहीं खाओ इस टाइम पर, और काफी लोगों ने छोड़ा भी है, तो उनके लिए क्वेश्चन है कि उन्हें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप छोड़ते हो या खाते हो ये आपका डिसीजन है, मैं खाता हूं, लेकिन अगर ये फैलाया जा रहा है कि आप मीट नहीं खाइए उससे कोरोना हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी ये बोल रहा है। WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी मीट से कोरोना को बढ़ावा नहीं मिलता है। मीट में होता क्या है? प्रोटीन होता है। मीट में होता क्या है? विटामिन B12 होता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मीट में होता क्या है? क्रेटीन होता है। ठीक है, ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं मीट में है, आप वो ही खाने से मना कर रहे हो, और फिर क्या अच्छी चीजें क्या दोगे? पिज्जा पे कोई मना नहीं करेगा, पिज्जा मत खाइए। बर्गर पे कोई मना नहीं करेगा, बर्गर मत खाइए। और बहुत सारी फ्राइड चीज वगैरह प्रोसेस फूड, इन पे कोई मना नहीं करता, लेकिन चिकन पे मना करना है, क्यों? रीजन नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है। जब WHO की गाइडलाइन में ये लिखा ही नहीं है कहीं कि मीट खाने से कोरोना हो रहा है या मीट को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो दिक्कत होगी, तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, और वैसे दिक्कत है भी नहीं, तो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेबल है। ओके, चलो अच्छी न्यूज है ये तो मीट लवर्स के लिए। आप खाते हो? हाँ, आई नो। हाँ, खुशबू का नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सोच रही हूँ। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस, यस एडवोकेट खुशबू, हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लाइक जैसे आजकल का ट्रेंड है, लाइक कोविड से पहले अभी तो सब कुछ बंद है, लोग फास्ट फूड बहुत खाते थे, बर्गर, कोक, गोलगप्पे एंड ऑल। तो ये हमें कितना, मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि हर दिन लोग खा रहे हैं इसको, ये लाइक पिज्जाज, तो ये सब खाना चाहिए? मतलब
इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्लस ये मतलब जितना लोग कहते हैं इट इज अनहेल्दी, बट स्टिल लोग नहीं रुक पाते, फूड एंजाइटी होने लगती है, तलब मचती है खाने की, लाइक खाना ही खाना है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो खुशबू, ये एक तरह का नशा है। जैसे एक चेन स्मोकर को बोलो सिगरेट छोड़ दो और उसको साइड इफेक्ट बताओ सिगरेट के, कि ये इसके साइड इफेक्ट हैं, आपको सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, तो वो पलट के ये बोलता है कि नहीं नहीं आपने कम साइड इफेक्ट बताए हैं, 2 और हैं जो कि आपने गिनवाए नहीं। तो एक चेन स्मोकर को मालूम होता है कि कितना सिगरेट उसको हार्म कर रही है और बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, कितने न्यूट्रिएंट है सिगरेट में, सबको मालूम होता है। कितने न्यूट्रिएंट हैं दारू में, बियर में, वाइन में, तो वो सबको मालूम होता है। ठीक है, ये उनकी चॉइस है कि वो कर रहे हैं कंज्यूम। अगर लेकिन कोई छोड़ना चाहता है सिगरेट, और इस पे नहीं आऊंगा मैं, ड्रिंक्स पे मैं बात कर रहा हूँ, पिज्जा की और ये चीजी और शुगर की, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप फॉलो करना छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप डेली खाते हैं तो डेली खाइए, उसमें से क्या करिए, उसकी क्वांटिटी हाफ कर दो। डेली जो भी खा रहे हो खाओ, क्वांटिटी हाफ कर दो। फिर दूसरी चीज, अगर क्वांटिटी हाफ करने में आप सक्सेस हो जाते हो, नहीं होते तो दोबारा तब तक करो जब तक हाफ नहीं होती। ठीक है, हाफ करने के बाद आप क्या करो, ऑल्टरनेट डे शुरू कर दो, या वीक में 4 दिन या 5 दिन शुरू कर दो, फिर 1 दिन और कम करो। और अगर फिर भी क्रेविंग कम नहीं खत्म नहीं होती है, तो दिन में एक अच्छी न्यूट्रिशन फॉलो करो, अच्छी डाइट फॉलो करो, और बॉडी को बताओ कि रात को खा ले, तुझे जो भी खाना है, तेरा जो भी मन है वो रात को खा ले। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी न्यूट्रिशन है उसके बाद आप कुछ भी खा लो, ये बॉडी को बोलो। ट्रस्ट मी, 65 to 80% लोग इस तरह से छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम पूरा न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, कोई एक्टिविटी करते हैं, उस पर खर्चा होता है, उस पर टाइम इन्वेस्ट होता है, उस पर मेहनत लगती है, तो रात होते होते इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो दिन में जो हमने कुछ अच्छा खाया है तो रात को उसको खा के हम बेकार करें, बिगाड़ें। तो रात को खा लो अगर खाना है तो, बॉडी को खुद से गिल्ट फील होने लग जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह से छूट सकता है, टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन पेशेंस रखना है। जो चीज आप 10 साल 20 साल 25 साल 15 साल से खा रहे हैं ना, वो 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में नहीं छूट सकती। महीना 2 महीना दीजिए अपने आप को, खाना चाहते हैं खाइए, बिल्कुल खाइए। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है आपको, आप न्यूट्रिशन में भी वेट लॉस करते टाइम भी शुगर खा सकते हैं, वेट लॉस करते टाइम भी पिज्जा खा सकते हैं, वेट लॉस करते टाइम भी आप बर्गर खा सकते हैं, चाउमीन खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी ये आपके मैक्रो में फिट होगी। जो भी आप खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी में, जैसे मैंने कार्ब और फैट का बताया था कि ये चीज ज्यादा करनी है तो ये हल्की सी कम कर दो, तो इसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, उससे फूड हैबिट भी मतलब छूट जाएगी। एक और चीज है कि एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। लाइक हम जो खुद से डाइट करते हैं वो हम कई बार ही नहीं कर पाते, लाइक हम फॉलो नहीं करते, कुछ हम गलत चीजें खा रहे होते हैं। तो वहीं न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल होता है हमारी डाइट्स में, या फिर हम हमें गाइडेंस वो ज्यादा बेटर दे पाते हैं या हम खुद से कुछ भी कर लें? देखो, खुद से करना वाला तो वो वाली बात हुई कि मेरे विजडम टूथ हो गया है। विजडम टूथ अगर मेरे निकल आया है, अकल दाढ़ जिसे कहते हैं, वो निकल आया है, ये तो वो वाली बात होगी मैं खुद निकाल लूं क्या? क्या आपको इस चीज की नॉलेज है? नहीं। अगर नॉलेज है, जैसे मैं हूं, मुझे किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाना, क्योंकि आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल, आई हैव मोर देन 7 to 8 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो मुझे औरों की जरूरत नहीं है, मैं अपनी डाइट खुद बना सकता हूँ यार, अपनी फैमिली की डाइट खुद बना देता हूँ मैं। ठीक है, वो अलग बात है, वो फॉलो नहीं करते। तो जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, या तो उसकी नॉलेज गेन करें, कोई ऐसा सर्टिफिकेट करें, सर्टिफिकेट नहीं भी करते तो ज्ञान बढ़ाएं अपना, ऐसे लोगों से बातें करें जिससे कि नॉलेज बढ़ पाए, और वो ज्ञान को बढ़ा के अपने ऊपर अप्लाई करो। अगर वो काम करता है बेस्ट है, अदरवाइज आपको किसी की गाइडेंस में ये शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ गलत चीज आपने खा ली, वो आपको रिएक्शन कर गई, उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है, सॉरी से बेटर है कि हम पहले से ही स्टार्ट करके चलें, किसी ऐसे के नजर में रहें। मैं तो कहूँगा मेरे ही पास ही आ जाओ यार, पैसे के।
तो किसी ऐसे की बिल्कुल नजर में रहे। बिल्कुल इस सेशन के बाद डेफिनेटली। हाँ, तो एंड ऑफ आई कोर्स थिंक आपको कि अभी न्यूट्रिशन हमारे के पास सेशंस जाना आज खत्म नहीं होंगे। वी विल है। रिक्वायर वन मोर सेशन विद यू डेफिनेटली। इट वाज अ ग्रेट सेशन। हाँ, और इस टाइम में पता सोचा चल मैंने, खुशबू मैंने सोचा था ये सेशन मतलब मोर देन 50 मिनट्स नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला मुझे अभी 1 घंटा हो गया। ये इवन आई कुडंट फील कि अभी 1 घंटा हो गया। इट वाज सच अ गुड इंटरेक्शन विद यू। थैंक काफी यू सारे सो दोस्त मच। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। तो मैं उन ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगा कि बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जो जुड़े आप लोग, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा, चाहे वो न्यूट्रिशन रिलेटेड हो, चाहे वो फिटनेस हेल्थ से रिलेटेड हो, या टैरो स्पिरिचुअल रिलेटेड हो, आप सभी को मैं उस चीज में इनवाइट करूंगा। और आशा करता हूं आप लोग सभी लोग आएंगे और अपने क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे जिस तरह से आज क्वेश्चन किए हैं। और जो हमने क्वेश्चन करे हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन शायद बचे हों। तो आज के लिए रैप अप करते हैं। इसके बहुत 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 थैंक यू खुशबू। डिस्कस करेंगे राहुल। धीरे धीरे क्वेश्चन आते हैं, एकदम से नहीं आते हैं लाइव सेशन में, धीरे धीरे आते हैं। बाद में सोचेंगे हमने ये क्यों नहीं पूछा। हाँ, बाद में तो याद अभी आते हैं, अच्छा हाँ ये बाद क्वेश्चन में भी याद रह आता गए है। यार, ये क्वेश्चंस भी रह गए। हाँ, बट तो अगर इनफैक्ट मैं ऑडियंस से भी हेल्थ एंड कहूंगा, फिटनेस इज अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। हाँ, अब ये कोविड की वजह से लोगों को रियलाइज हो रही है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम निग्लेक्ट करते आते हैं। अभी तक हमने इतना निग्लेक्ट किया है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, हमारे ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं हो रहे। जब सब कुछ लोगों को लगता था रेस्टोरेंट के बिना लोग जी नहीं सकते, लेकिन अब सब रेस्टोरेंट ही बंद है। Obviously, we are realizing the importance of fitness, and अच्छा खाना thank you for खाया। guiding us. चलो कुछ अच्छा ही हो रहा है वैसे इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, जहाँ लोग थोड़े स्ट्रेस कॉन्शियस में हो हैं, गए हैं। दैट्स लोगों वेरी की नाइस। जॉब छूट रही है, वहां पे कुछ चीज अच्छी भी हो रही है, हेल्थ की तरफ ध्यान जा रहा है लोगों का, ठीक है। तो मतलब बेटर है सबसे आप। अच्छी चीज क्या हो रही है कि we हाँ know बोलिए। you from last 7-8 years, but we are interacting today about health topics. सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि हम हेल्दी इंटरेक्शंस कर रहे हैं। हाँ, देर से इसे स्टार्ट हो गया एटलीस्ट। तो थैंक यू मैं राहुल, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा। और लोग जो भी हमें देख रहे हैं, वो अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हमारी ये फीड जो है ये लाइव रहेगी फेसबुक पे, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी लाइव रहेगी ये। तो आप वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी न्यूट्रिशन, टैरो, रेकी, किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से रिगार्डिंग आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी किसी भी तरह से जरूरत पड़े न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेके, तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और मेरी क्लाइंट मैनेजर है रितु, जो कि बैकएंड में जुड़ी हुई है मेरे साथ, और समारा जो कि मेरे साथ है, वो आपकी सभी क्वेरीज को हैंडल करेंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू, बाय। बाय। Say hi to Samara. समारा Bye. इज है। Hi, Hi Samara. how are you? Thank you so much for coming and joining us today I'm and good, I'm answering lovely questions. I think it's going to be an eye opener for a lot of people who want to concentrate on fitness and their health, especially during the lockdown. So it was wonderful to have you both. They were wonderful questions. We have some more wonderful questions. We True, can, true, that's true. Okay, do bye. this. We'll organize something very soon again, something for a different audience, and curating it for a special category in which you guys can actually help us out. So we'll contact you again, and let's see we come up with something new, something different regarding health. We will need a tarot session with you, tarot card reading session. That's You going can to tell happen very what soon. to You do will get to know, spiritually. and sometimes when I go live for the tarot, I'll let Rahul know so you guys can join that session too. Thank you, thank you. Thank you so much, both of Okay. you. Thank you all of you. Bye. 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 Thanks for the audience. Bye.